नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और कंपैरिजन। एंड दिस टाइम इट इज बिटवीन द थ्री कार्स दैट यू ऑल हैव बीन डिमांडिंग मच फॉर। BYD Dynamic Atto 3 versus MG ZS EV versus Curve EV, all top model, all with ADAS। करेंगे एक डीप डाइव, करेंगे एक डिटेल्ड कंपैरिजन और आपको बताएंगे कि वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर है इन माय ओपिनियन। आप भी अगर इन तीन गाड़ियों के बीच में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल हो जाएगी। अगर हुई तो यू नो व्हाट टू डू, हिट द लाइक बटन प्लीज। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो do subscribe, do hit the bell notification for many more future updates. Without wasting much time, let's quickly get started with the video. Let's get going. Let's have a look at the screen. So guys, I'm going to keep it very, very simple for you. BYD Atto 3 Dynamic, on-road price 26.42 Kolkata. This is tentative. MG ZS EV का top model, again this one is with ADAS 26.52, quite similar to the BYD Atto 3 and Tata Curve EV जो 55 किलोवाट का ADAS के संग में आता है, approximately 23.5 लाख, 23.5 lakhs in Kolkata. You can do the price comparison as per your state and as per your territory accordingly. So price segment में definitely value for money प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कर्व ईवी होती है, बट देन अगेन इट्स जस्ट नॉट इट। अपने आगे जाते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन पर। इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात करें गाइस, सब की सब जो ईवीज हैं वो फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती हैं, बट बैटरी पैक की अगर बात करें, दे ऑल आर इन द 50 किलोवाट बैटरी पैक, बट the Curve EV is giving you a 55 kilowatt battery pack, but at the same time with 49.92, Atto 3 is giving the Blade battery technology, which is by far the best in my opinion. 55 kilowatt and the 50.3 both are prismatic cells, which are more or less similar in terms of performance. Range is a different thing जो हम अलग से बात करेंगे। अगर बात करें मैक्स पावर की तो 201 bhp, 174 bhp and 165, the lowest being the curve. However, 0 to 100 की अगर बात करें वहां पर MG ZS EV is a notch faster than the BYD under the 8 second segment, but 8.7 seconds लगता है Tata Curve को. I don't really think that's really a big deal breaker. You let me know what you think in the comment section. At the same time guys, ये तो मैं इन तीनों का apples to apples comparison कर रहा हूं because मुझे ऐसा लगता है below 30 लाख, 20 लाख और 30 लाख के बीच में इन तीनों से बेटर आज के डेट पे कोई कार नहीं है। But very soon the pot is gonna be stirred thanks to Mahindra, Hyundai, Creta and Harrier EV। जब वो आएंगी वो भी ये 20 से 30 लाख के प्राइस रेंज के बीच में आके इस स्पेस को पूरा भर देंगे। अभी तक तो जो लीड कर रहे हैं वो लीड कर रहे हैं, बट बहुत जल्द यू विल सी सम ऑफ दीज कार्स विल हैव ईदर अ प्राइस स्लैश और यू माइट सी इनके फेस लिफ्ट आ जाएंगे। फेस लिफ्ट प्रॉब्ली फॉर ZS, प्राइस स्लैश फॉर प्रॉब्ली फॉर द कर्व EV। BYD Atto 3 जहां पर है वो मुझे नहीं लगता वहां से हिलने वाला है, जो है वही रहने वाला है। 310 Nm का टॉर्क, 280 215, definitely you feel underpowered in comparison to the other two, but definitely no compromise on the performance. So performance wise कर्व में आपको लैगी फील नहीं होने वाला है, but yes in terms of driving performance, nothing can beat in my opinion the BYD Atto 3 Dynamic. A very close second is the MG ZS EV and a distance third is the Tata Curve EV. All are good. I'm talking in my opinion, which is the best and which is the closest to the best. Okay, let me put it the right way. Range की बात करें 468, all these are claimed range. Okay, realistic की बात करें 468 बोलते हैं 375 plus, 585 I'm sorry, 585 बिल्कुल भी नहीं है, 400 realistic. So just see the range loss percentage so high with Tata. I really hope they work on it. I hope you are listening to this video. We really are proud as Indians to trust on your product, but you have to back up, you have to buck up
and back yourself up with proper BMS. ये नहीं चलेगा. 461 for ZS EV, realistic 350 plus. So there you go. I have driven all these cars and basis on my personal driving experience मैं ये quote कर रहा हूं. फास्ट चार्जिंग 7.2 किलोवाट से सबके सब अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे तक में चार्ज हो जाती हैं. दैट्स गुड. फास्ट चार्जर 80 किलोवाट सपोर्ट करता है BYD, और ZS EV यहां पर लैक कर जाता है विद जस्ट 50 kilowatt. I doubt. I think this is 70 kilowatt. Maybe this site is not updated. But yeah, 70 kilowatt both for Curve EV and ZS, but 80 kilowatt for BYD. But कितने ही तो मिलते हैं हमें. 60 किलोवाट, 30 और 60 का ही मैक्सिमम हमें फास्ट चार्जर्स डीसी के अभी अवेलेबल होते हैं. आप बताओ क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में. CCS2 तो अपना सब है ही. चलो अच्छी बात है, तीनों के तीनों फ्रंट व्हील ड्राइव है. अगेन दैट इज ग्रेट. और क्या, चलो इन दिस केस इंजन और परफॉर्मेंस में मेरे को अगर आप पूछो, द डायनामिक Atto 3 stands number 1. Distant second, oh no, close second is the ZS, and distant third is your Curve EV. Definitely not underpowered, but these two are amazing to drive. सस्पेंशंस की अगर बात करें तो गाइस देखो, मैकफर्सन सस्पेंशन अपने तीनों में है, बट ये जो मल्टी लिंक सस्पेंशन जो है, दिस एक्चुअली मेक्स अ बिग 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 डिफरेंस. इतने अमेजिंग सस्पेंशन है इसके कि मजा आ जाता है. टाटा कर्व एक्सीलेंट बैलेंस सस्पेंशन, ब्रिलियंट इनफैक्ट. एंड द ZS EV इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्टर साइड में आता है सस्पेंशन. सो देयर यू गो इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन. अपने को डिस्क ब्रेक चारों की चारों मिल जाती हैं तीनों गाड़ियों में, बट वेंटिलेटेड डिस्क मिलता है डायनेमिक Atto 3 में, which is again good. जो कह रहा था मैं 7.9 एंड 8.5. MG ZS 8.5 कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि 8 सेकंड से कम में स्पोर्ट्स मोड पे अचीव करते हैं. कहीं मैंने पढ़ा था, बट आई विल गो विथ व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू. 8.5, 7.9, 8.6. देयर यू गो. 17 इंच के अलॉय व्हील्स, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 17 इंच के अलॉय व्हील्स, दे ऑल आर परफेक्ट फॉर द कार. बिल्कुल इनका जो चक्कों की जो आवाज है, द टायर नॉइज डज नॉट रियली पेनिट्रेट थ्रू द केबिन एज मच. It's quite silent, it's fun to drive, it's very peaceful inside the cabin. Even if you don't put on the music, it's all good. A big shout out to my subscribers from the southern part of our country. Guys, I'm sorry that some of you have found it troubling understanding my Hindi videos. Unfortunately, I'm trying my best, but I just can't get through to the English subtitles. So what I've decided is I'm gonna make my videos in a little bit of English and Hindi so that you can adapt to it. Then later on, I'll try to make Hindi separately and English separately. So please have patience, keep showering your love and support as always, and I'm working on it. Public को जो चाहिए, the people will get what they want. Okay, moving on. So ये अच्छी बात है. Dimensions की बात करें तो देखो guys, 4300 mm की लेंथ अपनी दोनों में आती है, बट Atto 3 भले ही दिखने में आपको कभी छोटी लगती हो, but it's a long car, believe me guys, it's a proper length SUV car. Width में भी बड़ी है, और you know it's a wonderful car. You have to see it in person to understand it. So अगर looks की बात करें, dimensions की बात करें, obviously I am very 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 happy with the BYD Atto 3 Dynamic. Again, a very close second is the MG ZS, but problem है MG ZS में मुझे पीछे में नी और लेग रूम तो अच्छा मिला था, बट थाई सपोर्ट अच्छा नहीं मिला था. Atto 3 में सब कुछ अच्छा था मेरे हिसाब से, मेरे 6 फुट के हिसाब से. However, कर्व में स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है. ड्राइवर सीट उतनी नहीं, को ड्राइवर सीट भी उतनी नहीं. However, हेडरूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी फ्रंट टू सीट्स में, बट द रेयर सीट्स फॉर अ 6 फुटर, not too sure. You let me know what you think in the comment section. बूट स्पेस की बात करें गाइस, तो 500 लीटर की बूट स्पेस, द बिगेस्ट इन दिस सेगमेंट विद द कर्व ईवी. 450 odd for the other two, which does the work perfectly. There is no complaint whatsoever. Massive boot. In fact,
डायनेमिक एटो 3 में अपने को स्पेयर व्हील नहीं मिलती है, तो अगर वो आप डाल दोगे तो बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बट योर कर्व एंड योर ZSEV get the spare wheel. I think it does, right? Curve does get a spare wheel कि नए वाले में, मैं भूल गया यार, कमेंट सेक्शन आप बता दो, इतनी सारी गाड़ियां देख रहा हूं, मैं भूल गया। मुझे जहां तक याद है कि स्पेयर व्हील मिलता है, बट अगर अब नहीं मिल रहा है तो बस वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेट मी नो, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या तो मैं स्क्रीन के नीचे मैं आपको दे दूंगा कि कर्व में स्पेयर व्हील आता है कि नहीं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, तो देखो भाई, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में मोरलेस सब कार्स जो हैं वो अच्छी हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट प्रीमियमनेस की अगर बात करें, नंबर वन इज योर हैंड्स डाउन डायनामिक एटो 3, second is your MG ZS EV, and a far third is your Tata Curve EV. But again, after paying 23.5 lakh, you do expect some premiumness, but you get a lot of plastic, a lot of panel gapping, a lot of fit and finish issues with the Tata. Now that is something they need to work on. Nexon में चलता है, नहीं चलता है ऐसे नहीं बोलता हूं, चलता है बिकॉज मुझे पता है कि वो जो 15 से 20 लाख के सेगमेंट में और कोई वैसा नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट द विंसर ईवी, जिसने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेट मी नॉट डाइग्रेस, लेट मी कम बैक। अगर नेक्सॉन और विंसर का कंपैरिजन देखना है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। सो या, प्रीमियमनेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, यू सी, बिकॉज आप सेम प्राइस दे रहे हो ZS EV एटो 3 में, बट प्रीमियमनेस के मामले में दूर दूर तक कोई आसपास नहीं भटक रहा है इन बिटवीन दीज थ्री। तो डायनेमिक एटो 3 छप्पर फाड़ के आगे बढ़ता है, बिकॉज ना ही ZS EV में आपकी वेंटिलेटेड सीट है, ना ही आपके डायनेमिक एटो 3 में मिलती है आपको कर्व में वेंटिलेट। तो फीचर के मामले में मैं बोलूंगा फिर भी कर्व आगे है ZS EV से, राइट। ZS EV में फीचर्स हैं, बट कर्व फिर भी वेंटिलेटेड सीट्स दे रही है, अच्छा क्वालिटी का एडास, अच्छे क्वालिटी का जो 360 डिग्री कैमरा एंड एवरीथिंग इज बेटर इन कर्व देन ZS EV, बट परफॉर्मेंस में ZS EV इससे बेटर है। सो वन गॉट मेक their choices basis their likes and dislikes and their needs and requirements, and again, for that I am there. If you are confused, reach out to me at the number at the bottom of your screen, or there's a website in the description link. Do book a consultation and let me know. I'll be more than happy to help you, guide you in the right direction, as I've been doing with so many of my clients, and I thank you all of them for that. If you're watching this video, I really hope you have made the right choice, and do mention it in the comment section if you are watching. तीनों कार में हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स जो है वो मिल जाती हैं, विच इज ग्रेट। मुझे ऐसा लगा कि तीनों के तीनों में 8 वे होती तो बहुत मजा आता, कि थाई सपोर्ट में भी अपने को आराम मिल जाता, बट उस मामले में भी मेरे को नंबर वन अच्छा लगा इलेक्ट्रिक सीट्स ऑफ द एटो 3 डायनामिक। नंबर टू वाज द कर्व, बहुत अच्छा उन्होंने वो दिया है इलेक्ट्रिक सीट्स, एंड थर्ड, क्लोज थर्ड इज योर ZS EV। वीडियो डिटेल्ड हो रही है, आई नो वीडियो लंबी हो रही है, और बट वैसे मैंने पहले ही तीन गाड़ियों का कंपैरिजन है, डिटेल्ड कंपैरिजन है, थोड़ी लंबी होनी तो बनती है ना। तीनों के तीनों में हमें वो 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाती है एंड ऑल दैट थिंग। वो तो ईवी में नॉर्मल है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ऑटो हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं अपने को एटो 3 में, डिसअपॉइंटिंग फॉर दिस प्राइस सेगमेंट, बट नॉट अ डील ब्रेकर। मैं अपने कोई भी गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प ऑन नहीं रखता, हमेशा ऑफ करता हूं। आपको भी यही सजेस्ट करूंगा फॉर एन ईवी, ऑटो हेडलैम्प ऑफ रखो, वाइपर ऑफ रखो, ऑलवेज। इफ यू नो यू नो। लेदर एप स्टीयरिंग व्हील हमें तीनों गाड़ियों में मिल जाती हैं, लेदर एट सीट्स का अपहोल्स्ट्री हमें मिल जाता है। एम्बियंट लाइटिंग जो है हमें सिर्फ कर्व और BYD में मिलती है, ZS EV में नहीं मिलती है। तो अगेन, दैट इज वन थिंग। डिजिटल क्लस्टर, हमें पूरा डिजिटल क्लस्टर मिलता है तीनों गाड़ियों में, छोटा सा मिलता है एटो 3 में, बट उसको कॉम्पनसेट करता है वो बड़ा सा 15 इंच का या 12 इंच का इनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें सारे कंट्रोल्स हैं प्लस बटन्स भी हैं एटो 3 में, तो वो चलता है। थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा ZS का टच स्क्रीन, उस पर भी हम आएंगे, जल्दी आने वाले हैं उस पर। कुछ इस तरह के लुक्स हैं, सो व्हील्स का लुक आप देख लो, हेडलाइट कुछ इस तरह की हमें मिल जाती हैं, फ्रंट लेफ्ट साइड कुछ ऐसा आ जाता है, सो दैट्स गुड।
सेफ्टी की बात करें गाइस, तीनों कार्स आर 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में. ऑल आर ऑफरिंग एटलीस्ट 6 airbags with all the necessary safety features. So all good in my books. All three cars are good in terms of safety. 360 डिग्री कैमरा की अगर बात करें गाइस, तो जैसा मैंने बोला बेस्ट है अपने. बेस्ट अगर आप पूछो तो कर्व में बेस्ट है, फिर एटो में है, और डिस्टेंट थर्ड है अपना ZSEV. वेरी डिसअपॉइंटिंग. दे शुड डू समथिंग अबाउट इट. इट्स बिकमिंग अ डील ब्रेकर गाइस. एमजी वाले, अगर आप इफ यू लिसनिंग, इफ यू हियरिंग दिस. एडास. एडास हमें, मुझे लगा कि मैं भूल ही गया था कि BYD में एडास नहीं है. तो चलो एडास नहीं है, बट वही बात है कि इंडियन रोड के लिए एडास कितना जरूरी है नहीं है, ये तो मुझे नहीं लगता है. आपको लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो आप मेरे जैसे ही सोचते हो. बट MG ZS EV में भी एडास लेवल 2 मिल जाता है, और कर्व में भी लेवल 2 एडास मिल जाता है, which is again gives them an edge over the other two. एडवांस इंटरनेट एंड एवरीथिंग, कनेक्टेड कार ऐप नहीं मिलता है BYD में अभी तक. आएगा, कब आएगा ये नहीं पता, बट वो नहीं मिलता है. रिलायबिलिटी की बात करें तो चलो पहले एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, फिर अपने आते हैं कुछ एक चीजें जो मुझे लगता है आपको जाननी जरूरी है. सो वायरलेस फोन चार्जिंग तीनों में मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टच स्क्रीन मिल जाता है, 12 12 10. ऑल आर डिसेंट. बेस्ट इज योर BYD Atto 3, then is Curve, then is ZS EV. Android Auto, Apple CarPlay, वायरलेस हमें तीनों में मिल जा रहा है. अगेन दैट इज ग्रेट. बेस्ट म्यूजिक सिस्टम अमंगस्ट ऑल ऑफ देम बाय फार Curve EV with the JBL cinematic sound system is fantastic. Superb. That's about it. That's about it. तो चलो, ये सब तो हो गया ऑन पेपर्स. अब आ जाते हैं मेन बात पर. तो चलो, ये सब तो हो गया ऑन पेपर्स, अब जाते हैं मेन बात पर. तो देखो गाइस, मैं समझता हूं कि आज के डेट में अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो, वो फ्यूचर फिट होनी बहुत जरूरी है. बिकॉज क्या है ना, हर 6 महीने में, हर कुछ महीनों में एक नया कंपनी आके एक नया फीचर देगी, एक बढ़िया बैटरी पैक बोलेगी, बेटर रेंज बोलेगी. तो ये सिलसिला तो चलेगा. तो आपको जो कार कंसिडर करनी है, एज आई सेड, आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही सिलेक्ट करनी है. उसमें अगर कर्व फिट होती है तो अच्छा है, ZS फिट होती है तो अच्छा है, और एटो 3 फिट होती है डायनेमिक तो अच्छा है. बट फॉर मी, अगर मैं ये तीन कार्स के बीच में कंफ्यूज होता, तो मेरे थर्ड पर होती, यू माइट बी शॉक्ड, यू माइट बी शॉक्ड, वो होती MG ZS EV. बिफोर यू गेट ऑल savage at me. Why? Because इसका एक फेसलिफ्ट आने वाला है बहुत जल्द, विद 70 किलोवाट होपफुली. बिकॉज तब जाके वो 50 किलोवाट का विंसर ईवी लेकर आएंगे. तब जाके मेरे को ना थोड़ा सा दुख होगा, बिकॉज ये फीचर्स के मामले में थोड़ा सा आउटडेटेड गाड़ी तो है. 26 लाख अगर मैं दूंगा, उससे अच्छा मैं BYD डायनामिक लूंगा एनी डे, एनी डे. रेंज भी बेटर है, फीचर्स भी बेटर है, बैटरी भी बेटर है, सब कुछ बेटर है. आई होप आप अग्री करोगे. तो थर्ड में मैं ZS EV को रखता हूं. सेकंड में मैं देता हूं टाटा कर्व EV को, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के हिसाब से अच्छी गाड़ी मिल रही है. बहुत फ्लॉज है. एक तो टाटा के नैगिंग इश्यूज जो हैं वो लगे रहेंगे. स्पेस मैनेजमेंट खराब है. खराब नहीं बोलूंगा, चलो स्पेस मैनेजमेंट बेटर हो सकता था, लेट मी पुट इट दैट वे. सर्विस एंड ऑल दैट, रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है टाटा इन कंपैरिजन टू द अदर टू, इन माय ओपिनियन. देन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है. जैसे ही इनकी हैरियर EV अनाउंस होगी, हो सकता है इस पे 1-1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको देखने मिले. हो सकता है, ऐसा कुछ पता नहीं है. ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं. एंड नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी इज द Atto 3 Dynamic. इज अ नो ब्रेनर. नो ब्रेनर अमंग्स दिस थ्री. दीज आर, दिस वन इज द टॉप. बट Atto 3 में भी कुछ प्रॉब्लम्स है. कनेक्टेड कार एप्स नहीं है, सर्विस सेंटर्स अवेलेबल नहीं है. बट देन अगेन, the company takes a lot of ownership in making sure that you get the service, uninterrupted service. So that's kind of good. एक चाइनीज कंपनी का थप्पा जो है उस पर लगा हुआ है, तो वो जब जाएगा, जब वो मेंटालिटी चेंज होगी तब होगी. भैया MG भी चाइनीज थी, अब JSW ने 35% स्टेक ले लिए, तो सडनली वो चाइनीज नहीं है. लेट्स नॉट मिक्स
Politics with economics is what I would say, right? This video is already getting long, so let me quickly cut down to the chase. BYD Atto 3 is a no-brainer among these three. However, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि टाटा कर्व और ZS EV जिसका एक प्रॉपर एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो सकता है, तो मैं आपके लिए जरूर लेके आ जाऊंगा। तो क्या यार, आप लिखो आपको कौन सा चाहिए। देयर आर ZS EV is lying right in the middle। यहां पर है Atto 3, इधर पे है कर्व। इन दोनों से भी कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों से भी कंपेयर कर सकते हो। तो इसका एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए मैं जरूर लेके आऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो सो दैट वो अपडेट आप तक पहुंच जाए। Once again, guys, thank you so much for all your love and support. It has been overwhelming, this journey that we have started. We have to take it a long way. So please become a part of it. Please join our EV community. Please hit the subscribe button and the bell notification. If you really like this video, please hit the like button. Do share your thoughts through your comments. अच्छे thoughts हैं, बुरे thoughts हैं, कोई भी अच्छे बुरे thoughts नहीं होते हैं, guys. Thoughts are thoughts. I try to answer and reply to almost all the comments. So I really look forward to your comments. I make sure I take out time to do that. So उसके लिए आप बिल्कुल comment करो and share your thoughts. On that note, this is Nikhil signing off. मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी next video में. Till then, take care. God bless. I love you guys.